ज्ञानांजन गुरुदिया अज्ञानोन्मिलितनाश भयप्रकाशे संघटिया नानक मानो नरगास। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। प्रत्येक कर्म कमाने होश न काम जोग परमेश्वर के भजनिया व्यापन सभे ये मुख होए राम दे लगन जन्म जोग खिन्न कौड़े हुए गए जितने माया भोग विच ना कोई कर सका किस गीता ना हो गई लिखिया तो संजोग बड़ भागी मेरा सब नानक मेरे साहिब बंदी मोज पथ साध संग दिन सह सुखे सोच नानक मेरे साहिब बंदी मोच पथ साध संग दिन सह सुखे सोच प्रत्येक कर्म कमाए होश न काम जोग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की संगत जियो सतगुर पातशाह जियां दा बख्शिया होया पावन पवित्र दरबार सतगुर पातशाह जियां दी बख्शी हुई रूहानीयत दी छत्र छाया हेठ बैठ के आप समूह संगतां बहुत आदर प्यार प्रेम भावना मन की कशिश करके पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा सर्व धर्म प्रकाश विखे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रहमत नाल आए वीरवार गुरु पातशाह जियां दी पवित्र अमृत बाणी दी अमृत कथा दा आनंद माणदे हो। अज सतगुर पातशाह जियां दी कृपा नाल संगरांद दा दिहाड़ा है। अमृत वेले 12 माहे दे पाठ शरबन कीते भोग पिया। शाम दे दीवान विच लड़ीवार कथा श्री सुखमनी साहिब जियां दी सतगुर पातशाह जियां दी रहमत नाल चलदी है। अज संगरांद दा दिहाड़ा होण करके जो अज पवित्र महीना
ਕੱਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਤਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਤਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੱਤੇ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਚਾਹੇ 31 ਦਿਨ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਕਿਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਵੇਂ। ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰੇਂਗਾ ਫਲ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਫਲ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਵੇ? ਬੋਲੋ, ਤੂੰ ਹੀ ਲਾਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੈ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ। ਭਈ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਭਈ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਦੋਸ਼ ਵਧਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ 12 ਮਾਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਆਰਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਆਰਾਮ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਲਵੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਰਮ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਭਾਵ ਔਰ ਸੌਖਾ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਐਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਿਤ, ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਤੇ ਪਰਾਰਬਧ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਜੂ ਇਸ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਜੋ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜੇ ਹੈ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ, ਕਿਰਿਆਮਾਨ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਚਿਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਿਆਮਾਨ। ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਸੰਚਿਤ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਪਰਾਰਬਧ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੰਚਿਤ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅੱਜ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਚਿਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੰਚਿਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੱਟਵਾਂ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹਰ ਸਵਾਸ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਸੰਚਿਤ ਹੈ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਪਰਾਰਬਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਚਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਾਰਬਧ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਾਰਬਧ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਅੰਕਰ ਜਾਗਿਆ, ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੁੱਟੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਮਨ ਤੇ ਸੋਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਊਗਾ ਨਵਾਂ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੇ ਸੰਚਿਤ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਓਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ? ਸੰਚਿਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲ ਲਵਾਂਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਹ ਨਾ ਲਾਓ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰ ਲਵੋਗੇ।
इस करके एक क्रियामान ने तेरा संचित ठीक कर देना है ते तेरा प्रारब्ध भी ठीक हो जाएगा। पर जे तुसी क्रियामान तो जिस वेले तुसी मार खाने हैं ते तुहाडा सारा कुछ खराब हो रहा, क्योंकि कतक कर्म कमावने, इहदे विच की कमाया है उही है, उहदा ही फल मिलेगा, है ना जी। नारायण निंदिस काये भूली गवारी, दो किरत सुकिरत थारो करमरी। भगत तरलोचन जी, ठीक है ना। की कर्म कीता, वडेपा आ गया, तो कहन लगे वाहिगुरु ये असी कोई ये नहीं कहते कि साडे औलाद नहीं है, पर महाराज जी हुण कुछ वडेपे का सहारा चाहिदा है, बिल्कुल विरध हो गए हाँ, ते सानू आसरा कौन है। बेनती कीती भई हुण शाम नूं बेनती करते ने खुदा दा ध्यान करके, ते सवेरे एक 12-14 सालां दा बालका घर विच आ जांदा। बोलो हाँ बच्चा तू कित्थों आया है, कौन है तू? कहन लगे आ जी बस मैनू हुक्म है कि मैं तुहाडी सेवा करन वास्ते आया है, मैनू नौकरी चाहिए है, मैं नौकर हाँ, है ना जी। तो मैनू नौकर रख लवो, तुसी बुढ़े हो, मैं तुहाडी मुट्ठी चापी माल सब कुछ करूँगा। पुछया कि तू इस दे बदले विच की लवेंगा? तो उस बालक ने उत्तर की दिता, कहन लग्या मैनू कुछ नहीं चाहिए, जो तुसी जितना दोगे मैं उन्ना ही खा ला करांगा, बस मेरी एको ही बेनती है कि मेरी निंदिया ना करियो। की है? मेरी निंदिया ना करियो ते मैं तुहाडी सेवा करी जाऊँगा। वो कहते भी असी निंदिया कल ही करनी, मुफ्त च नौकर मिले है। ਉਹਨੂੰ एक रोटी देन एक ना प्रफुल्त, दो देन दो ना खाना, दोनों जाने ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਦਿਆ करे। भगत जी सारी खेड ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, लेकिन भगतनी ਨੂੰ नहीं सी बेचारी ਨੂੰ अजे इन्नी सोझी आई, तो भगवान बालके का रूप धारण करके आ गया उन्हों की सेवा दे विच कि इन्होंने आख्या कि सानू सेवा लई चाहिदा है, ते सी खुद परमेश्वर। वो करता रहा, किसी दिन एक देती, जिदन दो दित्तियां तां भी खादियां, जिदन 3 दित्तियां तां भी खा लिया, चौथी मंगी नहीं है। करदे करदे उहदे मन विच आया, कहन लगी इहदा ढिड नहीं भरदा लगदा, छड़ तो पुछी, पर अज इहदा मैं रज कराउणा है ना जी। तो रज कराउण लगी बेचारी, कराउंदी कराउंदी पीपे का आटा मुक गया। कहती रज तो कराउना ही है, गुआंढण दे लै आउणी है। जिस वेले गुआंढण दे गई लैण वास्ते, तो उन्होंने कहती भैणे आटा दे। कहते तड़के तड़के की गल हो गई? कहती एक बेसबरा जिहा नौकर है, सारा ही खा गया, अजे रजिया नहीं है। जिस वेले घर आई है तो बेसबरा है नहीं, उत्थे निंदिया कर दी, लगी रोन, कित्थे ये वाहिगुरु दिता कित्थे लै गए? तो हुण वाहिगुरु तो खुद ही सीगा। भगत जी आए, कहंदे की गल रोई जानी है? कहंदी नौकर भज गया जिहड़ा लत्तां लुत्तां घुੱਟਦਾ सी, सेवा करदा सी। कहंदी ओहदी निंदिया तो नहीं तू कीती? उन्हें कहा सी मेरी निंदिया ना करियो। कहंदी निंदिया तो कोई नहीं कीती, रोटी खिलाउण लगी नहीं रज्जिया, तो मैं गुआंढण तो आटा लिया। कहंदे उत्थे कुछ कहा होना? कहंदी मैं तो इन्ना ही कहा बेसबरा। बोलो, कहंदे बस उन्हों लिखिया है बाणी दे विच भई नारायण निंदस काए भूली, क्यों क्यों बचन भुल गई परमेश्वर दा। वो कहंदा असीं निंदिया ना करियो, ये है कर्म। की है? नारायण निंदस क्यों भूली गवारी, भई दुकिरत सुकिरत थारो करमरी। ये बुरे ते चंगे कर्म, ये तेरे कर्मां दा फल है। एक प्रमाण ने, बहुत प्रमाण ने, शमे नाल हुंदी है कथा। अमृत ससिया धेन लक्ष्मी, कल्पतर सिखर सनागर, नदी चे नाथंग
ਕਰਮ ਕਰਤ ਖਾਰ ਮਫੀਟਸ ਅਰੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਖਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? 999 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਛਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 14 ਰਤਨ ਲਿਖੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਸੀਆ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਧੈਨ ਕਾਮ ਧੈਨ ਗਊ ਨਿਕਲੀ। ਲక్ష్ਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਲਪਤਰ। ਇੱਥੇ ਕਲ ਪੱਤਰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਲਪ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਪ ਤਰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਕਲਪੱਤਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਲਪ ਤਰ। ਕਲਪ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਆਮ ਕੱਲਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੋ ਤਰ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਕਲਪ ਤਰ ਸ਼ਿਖਰ 7 ਸਰਬਾ ਘੋੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸੁਨਾਗਰ ਧਨੰਤਰ ਵੈਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ। ਨਦੀ ਚ ਨਾਥੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਰਮ ਕਰਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖਾਰ ਮਫਿਟ। ਤੂੰ ਖਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰਤਨ ਵੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਤਲਾ ਹੀ ਧੋਲੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਝੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ। ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 999 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਂਭੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੋੜ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਫਕੀਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਬਚ ਗਏ 2-4 ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਰ ਹੀ ਲੈ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਕਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਮੱਤ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋੜ ਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਚੂਲੀਆਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੇ। ਬੋਲੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਮ ਕਰਤ ਖਾਰ ਮਫਿਟ ਸ੍ਰੀ। ਤੂੰ ਖਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ 2.5 ਚੂਲਿਆਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਜਲ ਮੇ ਹੋਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਏ ਕਰਲਾਪ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲਘੂ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਲੇ ਵਾਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਖਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਮ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋ। ਕਤ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ। ਬੋਲੋ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਵੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼। ਦਾਦੀ ਲੈ ਲੰਕਾ ਗੜ ਉਪਾੜੀ ਲੈ ਰਾਵਣ ਬਣ ਹੈ ਨਾ। ਛਲ ਵਿਸ਼ਲ ਆਨ ਤੋਖੀ ਲੈ ਹਰੀ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਕਸ਼ੌਟੀ ਮਫੀਟਸ ਹਰੀ। ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਲਗੋਟ ਹੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਲੰਕਾਗੜ ਸਾਰੀ ਲੰਕਾ ਛਾੜ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਉਖਾੜੀ ਲੈ ਰਾਵਣ ਵਾਲ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛਲ, ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲਛਮਣ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਬੇਸਲ, ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਉਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਣ ਛਲ ਵੇ ਸਲ ਆਣ, ਤੋਖੀ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਤਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਕਸ਼ੌਟੀ ਮਫੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ੌਟੀ ਇੱਕ ਕੱਛਾ ਹੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ,
क्योंकि किसी समय महापुरख तप करते ते इशनान करन लगे ते कपड़े सारे ला के रखे उन्होंने, इन्हें पंड बन्नी ते सारे चुक ले। कहते महापुरख इन्होंने कपड़े की करने ने, ते उन्हां तो बेचारा जिहड़ा तेड़ पाया सी उही सी रह गया कला। ते वो रहन दे करके जिस वेले भगवान नूं खुश भी कीता ते भगवान खुश बड़े होए राम, ते कहंदे अज इहनूं बख्शिश कर दे। पर हनुमान आया ही उस वेले ते जिस वेले भगवान इशनान करन लगे ते उन्हां दे कोले उस वेले सी कला कस्सा। कहंदे लै तैनूं अज सारा कुछ ही दे दिता। बोलो मिलिया फिर वही पहनना पिया उसनों, कपड़ा नहीं पूरा मिलिया क्योंकि महापुरखों का सारा कुछ लीड़ा कपड़ा कट्ठा किया। लंका भी छाड़ दी, बाग भी पुट दिता है, उन्होंने भरा भी सरजीत करने वाली बूटी पहाड़ चुकया। पर कर्म करत कछौटी मफी टसरी नहीं मिटिया। इस करके मैं बेनती कर रहा राजे, ऐसा कर्म ना करो भोगे बिन भागे ना ही कर्म गति बलवान। ये भोगनी पैनी है, ये की है भोगनी पैंदी है। तो अच्छे कर्म करो, नेक कर्म करो, माड़ा कर्म कदे भी ना करो। और कर्म करते करते कित्थों तक जाना है, कर्म करत होवे निकामी तिसको प्राप्त होत स्वामी। ये भी एक कर्म है कि कर्म करदा, सेवा करदा, बाणी पढ़दा पढ़दा बिल्कुल ही निष्काम हो गया। हे वाहिगुरु मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सब कुछ तेरी खेड बरत रही है। जे ओदी खेड बरत रही है तो फिर सब कुछ ओही है, वो मिल गया। फिर कर्म है कि तुसी कर्म की करना है ना जी। इस करके जिहड़ियां कर्म है, यही महाराज जी ने बाणी च लिखिया, कर्म धरती शरीर। कहंदे ये शरीर ही तेरा कर्मां दी धरती है। ठीक है ना जी। कर्म धरती शरीर युग अंतर, इस युग दे विच जो तू इस विच कर रहा है, युग अंतर जो बोवे सो खात। कहंदे जिहो जिहा इहदे विच कर्म बीजेगा उहो जिहा तैनूं खाना पैना है। जो बोवे सो खात, कर्म धरती शरीर जुग अंतर, जो बोवे सो खात, है ना जी। तो इस करके जिहा बीजे सो लाउने कर्मा संदड़ा खेत। जिहो जिहा बीज बीजोगे उहो जिहा सानू खाना पैना। इस करके बेनती संगतां नूं करदे हां कि सोच के बीजो, सोच के भई निंदिया करोगे तो वो खानी पैनी है, चुगली करोगे खानी पैनी है। ठीक है ना जी। जवेह कर्म कमावता तवेह फल ते, जेहू जे कर्म तू कमाने है ओहो जा फल तेरा फलना है, खाना पैना है। कर्म दा खेड है। पुछो इसनू शाम नू बट के ए शरीरा मेरे इस जग में आए के तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचा रचा सो हर मन ना बसाया। जिन्हें तेरी रचना की है तो उस हर हर नूं वाहिगुरु 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 नूं तू क्यों नहीं तो मन का हिस्सा बनाया। ठीक है ना जी। इस करके इस शरीर तो किसी ने नहीं पूछना है। रोज मैं बेनती करा शाम नू 10 मिनट अज दा कीता तुहानू याद है तो बरीकी ते जाओ कि जिस वेले दा मैं जागया है मैं इनू शाम नू बैठ के ते हिसाब किताब पुछ लवां कि तू कीता की है। जे हो गईयां ने गलतियां ते कम से कम शाम नू अगले दिन ते ना गल छड्डियो। जिस वेले देख लिया हिसाब कर लिया है उस वेले सतगुरा दा ध्यान धर के ते रोपो महाराज आ कुछ अज मेरे कोलों हो गया, मैनू अजे ही बख्श लो। बोलो ये भी कर्म है। ये भी की है कर्म, अपने आप को बख्शाउना लंबा ना पाओ, कम बढ़ जाऊगा।
तो पातशाह जेड़े ने वो बख्शनहार ने कि पिछले औगण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे। पर तेनू रोज ही बैठ के जेड़ा वो हिसाब करना अपना, किसी ने नहीं करना। किसी नू तो पता ही नहीं, ना तो किसी नू दसना है कि मैं आ कीता माड़ा, मैं आ कीता, दस हुंदा ही नहीं। कई गल्लां ही इहो जिहियां हो जांदियां ने, है ना। पर रब तो ना लुकाइए, गुरु ग्रंथ साहब तो ना लंघाइए, है ना। कोई ऐसा नगर नहीं जिस नगर विच गुरुद्वारा नहीं, जिथे रब नहीं। एक दे दो दो तीन तीन तो हो सकते ने, नहीं एक तां श्री गुरुद्वारा पक्का है। अपना रूटीन बनाओ कि मैं शाम नू जाके माफ़ी मंग के आउणी है। रात लंघी है, सुपनिया च भी कोई माड़े विचार आए ने, ते तड़के आके महाराज तो माफ़ी मंग लो करो कि आ महाराज मेरे सुपनिया च वरत्या, मेरे की कर्म माड़े ने, है ना जी। इस करके ये कर्मां दी राजे खेड है सारी, ते कर्म ही चंगा करन वास्ते कलगीधर पातशाह ने साडे उत्ते बहुत तरस किया कि इस नूं तड़के उठदियां ही नित नेम कर्म दे दिता। बोलो कि तू ये तेरा कर्म है कि रोज नित ਇਹਦੀ शुरुआत ਇਹਦੀ लगन सवेरे बाणी च लग जाए तो मुड़ के ये सारा दिन करे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, है ना जी। तो इस करके की है, ऐसा कर्म करो कि नित नेम पूरे रीझ ना करो, इन्ने क रीझ ना करो कि दिने सिमरन करनू बार बार जी करे। ठीक है ना जी। केवल कर्म भरम से चीनो, धर्म कर्म अनुरागो, 10वें पातशाह की बाणी की है। केवल कर्म भरम से, जिन्हां कर्मां दे विचों भरम पैदा हुंदे ने, जिहड़े कर्म कीतियां रब तो दूर होइए, वो कर्मां नूं छड्ड दवो। वो ही धर्म दा कर्म है जिहड़ा तुहानूं खिच के खुदा नाल जोड़दा, ते ओही करो। ते बाणी च लिखिया केवल कर्म भरम से चीनो, छड्ड दवो धर्म कर्म अनुरागो, पई संग्रह करो सदा सिमरन को, परम पाप तज भागो। पातशाह कहंदे जे कट्ठा करना ते कर्म ये करो कि मैं सिमरन कट्ठा करना है। कि है सिमरन ही करना है। संग्रह करो, बहुत कट्ठा करो, कि संग्रह करो सदा सिमरन को। परम पाप जिस दे कट्ठे होया ते बड़े तो बड़े पाप भी खत्म हो जाएंगे। संग्रह करो। हाँ जी। सुनो बाणी सुनो, सारी गल साफ हो गई है कि पातशाह जी ने कह दिता, पंजवें पातशाह ने, कि परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे। पातशाह कहते कोई रोग नहीं रह जू जिहड़ा तैनू नहीं लगना। जे उह तो भुल के उहदे चिंतन तो बिना, उहदे सिमरन तो बिना, उहदी सेवा तो बिना जे तू जिंदगी बतीत करनी है तो रोग लगने ही लगने है ना जी। रोग लगने ही लगने हैं। इस करके मैं पहले ही बेनती करती कि कर्म दे उत्ते गल है, अरदास करो जे भुली जे चुकी भीत हैंजी काडियां। महाराज जे मैं निकल जोगी होंदी ये माड़े कर्मां च तो मैं निकल जागदी, पर मैं डिग पई है ते हुण ये खूह दे विचों तू ही मैनू कढ। बांह पकड़ कढ लीने अपने ग्रह अंधकूप ते माया, मेरी बांह फड़ो ते मैनू कढ लवो इन्हां माड़ा कर्मां दे खूह च ते मैं पै गई है। पर ये बेनती कर दी कोई नहीं, गलती हो गई तो कोई गल नहीं, मैं वड्डी कहंदा भुलने अंदर सब को भुल गुरु करतार। पर गलती हो गई कोई गल नहीं, पर ये करो कि गलती करके किते खुदा दा रस्ता ना छड्ड दिओ। इत्थे आओगे तो गलती तो बख्शी जाऊगी। बाणी पढ़ो कि जे भुली जे चुकी भीत हैं जी काडियां, पर जिन्हां नेहू दुजाने लगा कि उन्होंने छड्ड के ते दूजे पासे मुड़ के ओह तुर पिया है। कहंदे डूब मोरो से वाडिया, के कहंदे फिर इसे दलदल च डुब के मरेगा तू,
है ना। इस करके सतगुरु जी बख्शिशा करन कि हे पातशाह भुलां साडे तो हो रही ते जो हो ना मैं पाप करंता ता पतत पावन कैसे तेरा नाम हुंता। भगत जी की कहंदे ने जे मैं पाप ना करदा ना तो फिर तेनों बख्शणहारा किहने कहना सी। बोलो मेती गलतियां होइयां है तू बख्शिया है ते तेरा नाम बख्शणहार पै गया है। तू बख्शंद है ना जी भी नामे के स्वामी बख्शंद तू हरी तू बख्शणहारा। जदों सानू पता है कि बख्शणहार हैगा है तो फिर आपां छड्डना ही नहीं, रो रो के मर जाइए कि मैनू बख्श। जिन्ना चिर मन नूं धीरज नहीं आउंदा कि मैनू बख्श लिया उन्ना चिर नहीं है, है ना जी। तो बख्श लिया का अर्थ यही होंदा कि तेरे अंदरों ही तेनों पता लगू। जदों तेनों मुड़ के पहले वाला आनंद शुरू हो गया अंदरों अंदर ही, यदा मतलब तू बख्शिया गया है। हाँ जी। पातशाह कहते बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। जन्मा जन्मां दा विजोगी हो जाता बंदा वो तो बेमुख हो के। जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे। पावे मुक्त ना होर थां कोई पुछो बवेकियां जाए। अनेक जोनी भरमे आवे बिन सतगुर मुक्त ना पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुर शब्द सुनाए। इन्ना ही तुसी ला लो कि उस सिख नूं याद कर लो जिहड़ा गुरु नानक तो बेमुख होया सी। मूला खत्तरी बोलो होया ना, जान निकल गई। अनेकां जूनां दे विच गया है। उस तो बाद खरगोश दी जूने पिया। पातशाह सारे जंगा युद्धां तो बाद सचखंड श्री नंदेड़ साहब की धरती उत्थे गुरुद्वारा बनिया होया है राजे, है ना जी। शिकार घाट जिथे इहदा मुड़ के आधार महाराज ने तीर मारिया कि ये साडा सिख है बख्शणहार। सानू तो बंदा नहीं बंदा दिखता ना भी कौन तुरिया जाता है। धन सतगुरु पातशाह कि पहले तो लैके उन्हें बेचारे ने सहज की किन्नी उम्र इहो जिहियां की भी तो पहले छोटिया छोटिया उम्र वाले किहड़े किहड़े जन्मां च गया बेचारा, है ना। तो मुड़ के आया तो देखो उथे निगाह पै गई, तीर खिंच दिता ते बख्श लिया। फिर मुक्त पाए लाग चरनी है। इस करके राजे गुरु तो बिना किसी ने बख्शना नहीं है। तो जे वो दूजियां जूनां दे विच गए नूं बख्श सकदा है तो इसे जून दे विच ही जे गलती हुई है तो इसे च ही उहदे दर ते डिगांगे, चरना च आ जाएंगे, जरूर बख्शेगा, जरूर बख्शेगा। हाँ जी। बेमुक्ता दे विच जितने भी माया दे भोग भोगदा ना बंदा वो मुड़ के वो कौड़े ही होंदे ने। मिठा करके खाया कौड़ा उपजिया साथ। इन्हां दे स्वाद जिद्दां तुसीं राजे महाराजियां दियां मिठास दियां चीज़ां नूं कि सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मानदा किश नाहे बसूरे सो प्रभ चित न आवी बिष्टा के। कौड़ा हो गया ना काम। राज लीला राजन की रचना करिया हुक्म अफारा सेज सोनी चंदन चोआ नरक घोर का कौड़ा हो गया। कादे वास्ते बेमुख हो के भुल के जिंदगी कट रहे सी, है ना जी। हुण बिच ना कोई कर सकते, इत्थे तो कोई नहीं कुछ कर सकता, है ना जी। तो हुण वो उत्थे रो रहा है, एक एक जून दे विच कल्प रहा है, पर नहीं कूक पकार को ना सुनी। ओए औखा होए होए रोया, बड़ा औखा। एक एक जून दे विच नाली च पए दी की जिंदगी है। बोलो मानस नूं तुसीं छड्ड दो, जंगलों च ना कोई घर है, किद्दां उस दिन कट रहे है रीग रीग के, है ना जी। तो इस करके उत्थे हुण कोई भी सुनन वाला नहीं है।
पर मैं बेनती फिर ਉਹੀ करदा कि ये कर्म करो कि अज मानस जन्म पा के जे कोई गलती हुई है तो औखे ना होवे। इत्थे तुहाडे कोले सुनन वाले गुरु ग्रंथ साहब हैगे ने, बोलो तुसीं सुना दो अपना दुख ना, है ना जी। हुण तो सुनन वाले ते हुण सानू सोझी भी है, दूजे जन्मां च सोझी भी खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम तो फिर एक तो एक दा दुख हो झलना पैंदा है। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म पंखी शर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चरंग काले दे संजरिया। हुण साडे देखो राजे कि दुख सुनन वाले सतगुर जी हैगे ने, तो उन्हां नूं अपना जो भी अंदर दा दर्द है नहीं दसना, मैनू भी नहीं दसना, किसी नूं ना दसो तुसीं, पर सतगुरां नूं तां दस दो ना। उन्हां नूं नहीं भी दसेगा तां भी तो पता है ना। पातशाह जी ने तो बाणी च खोल के कह दिता है कि अगों देखे पिछों देखे तुझ ते कहा सुपावे। बोलो अगों देखे उन्होंने तो तेरे आने वाले जन्मां दा भी पता है, कल का भी पता की करना है, पिछे की कीता जिंदगी च भी पता, ते पिछलियां जड़ियां जिंदगियां लंघियां ने उन्हां चों तू की करके आया है। बोलो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ राजे कुछ भी लुकाया नहीं जा सकता। ते तुहानूं बेनती यह करदे आ कुछ लुकाउण दी आदत ना पावो, सब कुछ खोल के रख दवो। हाँ जी हुण जिथे आके रोना सी मानस जन्म च वो ते थां तू गवा लई है, तो हुण तू दसो किहड़ी जगह दे उत्ते रोएगा। बोलो जंगलों च पिया है, नालियां च पिया है ना जी, की जिंदगी रह गई है ना जी। इस करके सतगुर सच्चे पातशाह ही कृपा करन, मेहर करन सच्चे पातशाह। जे सानू रोण दा ही समा दिता है तो फिर असीं रज के गुरु दे कोले रो लीए। जिहड़ा साडा रोना हमरी बेदन हर प्रभ जाने, मेरी दुख पीड़ता सच्चे पातशाह तू जानदा है। इस करके असीं जे रोने हैं तो साडा रोना जरूर सुनो। हाँ जी कीता कछु ना होवी लिखिया धुर संजोग। धुर तो ही ये संजोग लिखिया गया है। की है वो संजोग? की है तेरे पिछले जन्म, की है तेरे पिछले जन्म। ये तेन वो तंग कर रहे ने। कोई जाने कवन इहा जग मीत। शायद कहते कोई आख्या बहुत सारिया दे विचों शायद किसी ने जानिया होवे कि इत्थे मित्र कौन है तेरा। कोई जाने कवन इहा जग मीत, जिस होए कृपाल सोई विद बूझे। ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੁੱਝਣ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਰਹੋ ਰੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗੀ। की है ना जी। मैं संजोग की गल कर रही सी कि संजोग की चीज़ है, उन्होंने सुन लियो भई। ताकि निर्मल रीत मात पिता बनता सुत बंधप इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंते को ना सहाई। ये कौन ने जिन्होंने तू कहना मेरा सज्जन, आ मेरा मित्र, आ मेरा भैन, आ मेरा भरा। पातशाह कहते कि ये तेरिया पिछले जन्मां दियां वासनावां मुड़ के तेनों चुंबड़ गईयां ने। बोलो पूर्व जन्म के लिखे है महाराज जिया ने। मात पिता ये सारा तेरा मोह सी, वो मुड़ के मोह आके चंबड़ी जाता, तो उहदे विच भेद नहीं होया, ते मोह की दुनिया दे विचों बार बार निकल नहीं सकिया है।
ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਂ ਰਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ ਕੀ ਹਰ ਨਾਮ ਬਸਿਆ ਸਦ ਹਿਰਦੇ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਤਿਨ ਕੋ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਧਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਹਮਾਰਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਖੜੇਗਾ। ਪਰ ਇਧਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਣਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦਪ है ना जी। माता होगी, पिता हो गया है, बनता घर वाली हो गई है, सुत पुत्र हो गया, बंधप रिश्तेदार हो गया, इष्ट मीत प्यारे प्यारे मित्र अर भाई ते भरा। ये कौन ने? कहते पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंते को ना सहाय। अंत नूं कौन है तेरा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਕੁਸ਼ਕ ਸਾਂਝਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਈ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਕਣਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਕਣਕ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਪਏ ਨੇ ਹੀਰੇ ਪਏ ਨੇ ਲਾਲ ਹੀਰਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ। 4 ਦਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ, ਹਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਬਦੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਬਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੇਰਾ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸੱਜਣ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰ। 3 ਸੱਜਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਏ। ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਆਗੇ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਈਏ। ਹੈ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ? ਭਈ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਆਖਿਆ। ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਹਮਾਰਾ। ਹਰ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਜਣ ਲੱਭੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਰ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਹਰ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਲਤ। ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡੋਬਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਅੱਗਾ ਵੀ ਡੋਬਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਈ ਹਰ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਹਰ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਲਤ। ਭਈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਆਰ? ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ?
जो मेरे सतगुरां ने नाम बख्शिश कीता है। ठीक है ना। हर नाम हमारी संगत अत प्यारी, हर नाम कुल, हर नाम परवारा। मेरी कुल भी नाम ही है ते मेरा परिवार भी नाम है। कुल्लां चलियां शरीर ते जन्म के आधार के उत्ते, उन्हां दे घर जन्म ले लिया, उन्हां दे ले लिया, पर जिहड़ी आत्मा है वो तो आत्मा ही है। वो ना चूड़ा है, ना चमार है, ना जट है, ना शाही है, ना जैनी है, ना बोधी है। आत्मा तो बस परमात्मा का ही अंश है ना जी। इस करके की है, पातशाह साडे उत्ते किरपा करन, सानू सोझी आ जावे कि असीं किस तरह जिंदगी जिहड़ी बतीत करनी है। हाँ जी। पातशाह कहंदे कि जे किते वड्डे भाग जाग पैण तो फिर की हुंदा है, मेल हुंदा है सतगुरां दा, परमेश्वर दा मेल हुंदा है ना जी। तो हुण पातशाह साहब गुर पूरा भेटिओ वडभागी। साडा प्रभु कौन है? साडा सतगुर है। फिर की होएगा? गुर पूरा भेटिओ वडभागी। हुण बैठे हैं ना घड़ी, आपां इस घड़ी का तो कोई लेखा नहीं ना लै सकदा। ये घड़ी वो है कि जिहड़ी तेरे होर भी लेखे कट्टेगी। की है? होर भी लेखे कट्टेगी। गुर पूरा भेटिओ वडभागी। एक गुरु ही है। गुरु की है? ओदी याद ही तेरे मन का चानन प्रकाश है। गुर पूरा भेटिओ वडभागी, मने भया प्रगाशा, कोई न पहुंचन हारा दूजा। किसी दूजे की पहुँच नहीं। जदों गुरु अंदर चिंतन चलता होवे गुरां दा, कि कोई दूजा ऐसा नहीं आ सकता कि जिहदे करके मैनू लेखे देने पै जाण। प्रकाश हो गया है। गुर पूरा भेटिओ वडभागी, मने भया प्रगाशा, कोई न पहुंचन हारा दूजा। अपने साहिब का प्रभासा, अपने सतगुर कै बलिहारै। आगे सुख पासे सुख सहजा, घर आनंद मारे। आगे तो पिछे इत्थे भी अगे भी सुख तो है, पर मेरी रोज की जिंदगी भी मेरा गुरु की कृपा नाल आनंद विच बतीत हो रही है। घर आनंद की है तेरे घर च? कहंदे आनंद है, खेड़ा है। हलत सुख पलत सुख, नित सुख सिमरनो, नाम गोबिंद का सदा लीजे। लोक भी सुख, परलोक च भी सुख, नित ते हर रोज ही सुख। पर नाम गोबिंद का सदा लीजे। रोज तेनू नाम जपना पैना है। मिटे कमाने पाप चराने, चिरां चिरां दे कीते होए भी तेरे पाप मिट जाणगे सिखा। पर पातशाह की कह रहे ने कि नाम साध संगत मिल मूआ जीजे। इस साध संगत दे विच आ जाया कर। जिहड़ा आत्मक जीवन वालों मर चुकिया है, मुड़ के तेनू आत्मक जिंदगी जिउण दी इत्थे आके जिंद जान पै जाएगी तेरे अंदर। कि असी आत्मक इत्थे आके सोझी होनी है। पिंड दियां गलियां दे विच है ना जी, होर किते चौंका च बह गए, किते ताश खेडदे देखोगे, किसी दियां माड़ियां चंगियां सुन। बच जावो, जो हो गया पिछे ओदियां माफियां मंगीए सतगुरां तो। जो बच गई है ओदी अरदास करिए कि हर आउण वाला सवास हे पातशाह तेरा दिता ते तेनू ही भेटा होवे। ये रहमत करो साडे उत्ते। ठीक है ना जी। जिसकी बस्ते से आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे, उसते चौगन करे निहाल। नानक साहिब सदा दयाल, है ना जी। तो इस करके पातशाह जी कृपा करन। हाँ जी। सतगुर पातशाह जी आप जियां दे पावन पवित्र चरनां दे विच मेरी अरदास बेनती जोदड़ी है कि मैनू रख लै, ज्यों भावे त्यों रख लै। हम शरण प्रभ आए
काहदे वास्ते आए? सानू इन्ना ही नहीं पता हुंदा, असीं ऐ करके मत्था टेकिया ते बस चले जाने। नहीं, अपना आप बख्शाउण वास्ते आओ। मंगो के पातशाह जो जिंदगी रह गई मैं भी देख लवां कि तेरे घर का आनंद किहो जिहा है, तेरे इस बाणी चो किद्दां रस दियां घुट्टां अंदर पैंदियां ने, जिहड़ियां घुट्टां नूं आप जी ने लिखिया बाबा मन मत वारो नाम रस पीवे सहज रंग रच रहया, एहनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गया, पूरा साच प्याला सहजे तिसे प्याए जाको नदर करे। ये सच दा पूरा रस भरिया प्याला कहंदे उस नूं नसीब हुंदा जे ते तेरी नदर हुंदी है। ते हे पातशाह इस गरीब ते भी एक नदर कर दवो। कहो करो पातशाह नूं आके, तुसीं क्यों नहीं कहंदे? गुरु ग्रंथ साहब के अगे आके रोना रो कि मेरे ते भी एक नदर कर दो सच्चे पातशाह, जिनको नदर करम तरंकार है ना जी। नानक नदरी नदर निहाल, नदर करे जे अपनी तां नदरी सतगुर पाया। ये तो तेरी नदर ते सौदा खड़ा है सच्चे पातशाह, पल विच करके नदर मेहर दी बख्शण खुशी खजाने, शाहां दे सिर शाह बडेरे जो उसदे मस्ताने। कर पो सच्चे पातशाह एक नदर मेरे गरीब वाल नूं भी कर दवो ना, ते मैनू बख्श लो सच्चे पातशाह। तुसी तां बहुत बख्शे, तुसी नदर अपनी इको ही कीती है, वो कौड़ा रीठा। एक पासे मैं ये भी बेनती कर दियां, अज भी जाओ, एक पासे दे टाणियां नूं मिठे रीठे ने, एक पासे दियां नूं कौड़े ने। क्यों? जिधरले पासे कौड़े ने उधर सिद्ध करामाती बैठे सन। बोलो, जिधरले पासे मिठे होए ने उधरले पासे गुरु नानक बैठा है, ते दरख्त एको ही है। बोलो सतनाम। देखो गुरु नानक दियां खेडां, एक नदर कौडे राक्ष ते करदे ने ते ओनू मिठा कर देंदे ने, एक नदर सज्जन ठग ते करदे ने ते ओनू मालो माल कर देंदे ने। ठीक है ना जी। तो इस करके सच्चे पातशाह साड़ी अरदास है कि ज्यों भावे त्यों राख लें, हम शरण प्रभ आए राम राजे। इस गल ते आओ, मत अड़ियां करो, मत हंकार करो। ये गल कहो कि हम भूल बगाड़े दिन सरात। पातशाह एक नहीं भुल, दो नहीं भुला, मेरे तो ते रात दिन गिनिया ही नहीं जांदियां कि मेरे कोलों गलतियां किनियां क होईयां। और वो गलतियां करदियां करदियां मैं एक सोटिया जिहा ऐ खड्डे दा रूप पानी नहीं, कोई हौदी जो इन्ना नहीं रह गया मेरे औगण, जां एक नहर जिन्ने एक चो नहीं। बाणी ने निर्णा किया कि जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे दया करो किश मेहर अपावो डुबदे पत्थर तारे। ये सब कुछ बिल्कुल 100% ही कह दीदा है। उहदे उत्तों दी भी जो कुछ मर्जी तुसी कह दो ते ये सच है, जिहड़े सतगुरां दे बचन हन बिल्कुल सच्चे ने। तो पातशाह ही कृपा करना। हाँ जी। पातशाह जी समझा रहे ने कि कतक होवे साध संग बिन से सभे सोच। सभे कह देते, कोई भी सोच नहीं रही है। ते 7वीं अष्टपदी दी आप जी ने कथा पिछे लंघी है, हुण 8वीं दी चलदी है। ते ये सारियां सोचां उत्थे लाइयां कि साध के संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत। लथ गई, कोई सोचता रही नहीं जदों सारी मैल ही लथ गई है। साध के संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटे अभिमान, हंकार मिटदा है। आम नूं की है, किसी नूं कथा करन के वो तो बेचारा हाजरी भरन आया, मैं इधर न वो करके चलिया गया। कोई सतपुरुष तत बेता, कोई पूर्ण गुरमुख प्यारा जिहड़ा दूजियां दा दर्दी होएगा, वो संगत तो बाद भी उहदे नाल जुड़िया रहेगा ते उहदा ध्यान भी रखेगा कि इह किहो जी अवस्था च इह जाण डिया, इहनूं अगे नूं तोरीए। होर साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बूझे प्रभ नेरा। साध संग सब होत बिन से सभे सोच।
साध संग सब होत नमेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर, बाकी मुक गया, एक दा ही जतन रह गया। बिन से सभे साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा वरने कौन पुरानी, नानक साध की शोभा तेनू किथे लै जूगी, प्रभु च लै जू। साध के तेनू सोच कादी, बिन से सभे सोच, साध के संग सब कुल उधारे, सारी कुल दा ही भला हो गया। साध के संग सब कुल आधारे, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे, साधु के संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को बरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा। बोलो, एक कुट्टां पैंदियां ने माड़े लोकां दी संगत करके, एक दी संगत कीती है जिहदे जम सारियां नूं कुटदे ने। वो कहंदा इहो जिहा कोई मेरे कोले आवे जिहदे नाल मेरी भी इस पुरी च ठंड वरते ते मैं भी उहनां दी सेवा कर लवां। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। इंद्र दे देवते भी शोभा करनगे जिहड़े ये संगत करते ने। साध के संग शोभा सुर देवा, ठीक है ना जी। साध के संग ना कबहू धावे, साध के संग तो जिन्ने फल तुसी पढ़ी चलो क्षमा हो गया है पूरा। गुरु पातशाह आप समूह संगतां दे उत्ते किरपा करन। फिर बेनती करते हैं कि अज कत्ते दा महीना प्रकाश होया है, कतक दा महीना प्रकाश होया है, ते महाराज जी ने किरपा की है कि कत्तक कर्म कमावने, दोष ना आपां कर्म ही की करने, सत्संग करनी है, ये कर्म है साडा। सवेरे उठ के नित नेम कर्म पंज बाणियां पढ़नियां, सुखमणी का पाठ करना है, क्षमा मिले सेवा करनी है, घर दे विच सहज पाठ रखिया वो आपां करांगे, है ना। गुरमुखां दा मेल रखांगे, मनमुखां तो असी परे रहना है ना जी। तो इस करके वो कर्म करो जिहड़े कर्मां दे नाल तुहाडा अंदर प्रफुल्लत होवे, तुहाडे अंदर आनंद आवे, तुहाडे अंदर खेड़ा आवे, जिहड़े कर्म दे नाल तुहानूं पूर्ण रस दी प्राप्ति होवे, है ना जी। तो अज फिर कहने कि कत्ते दा महीना, हे पातशाह उही साडे बस की गल नहीं है, साडे कोलों उही कर्म करायो जिहड़े कर्म करके हे पातशाह ते च अभेद भी होईए ते तेरी बंदगी करके ते रात दिन दा असीं आनंद भी लईए। वो कर्म ना महाराज जी साडे तो सानू आप फड़ लियो महाराज जी। जिथे कोई माड़ा होण लगा है ते जिथे कोई चंगा कर्म होगा नहीं भी पैर पुरदे ते सानू धक्का ला दिओ, पिछे साडे ते तरस करियो ते साडे तो जरूर करा लियो। सच्चे पातशाह दे अगे बेनतियां, ते जिथे किते माड़ा पैर पुट्टण लग्या महाराज जी उथे दे के धक्का पिछे छोड़ दिओ, नहीं जाना सिखा इधर, ठीक है ना जी। तो गुरु पातशाह समूह आईया संगतां दे उत्ते रहमत करन। मुड़ के आप जियां दे पावन पवित्र दर्शन संगतां दे बड़ाड़ रूप है परमेश्वर दा। मुड़ के ऐतवार नूं नाले आपां धन 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 श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह उन्हां दा आपां ने आगमन दिवस ऐतवार नूं मनाउणा है। ते समूह संगतां ऐतवार नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ने 7:30 तो पहले 7 वजे ਤੁਹਾਨੂੰ हथ जोड़ते ਹੁੰਦੇ है ना जी। ये तो ਹੁਣ देख लो भी इस तो परे तो ਹੁਣ कुछ ਹੁੰਦਾ नहीं है, हाथ ही है ना अखीर, है ना जी। तो सारी संगत नूं हथ जोड़ के बेनती करते हैं कि 7 वजे नूं आके सारे पंडाल दे विच बह जाया करो। आप समूह दे उत्ते अरदास भी करी दी है, गुरु पातशाह रहमत करना। गुरु पातशाह तो पातशाह जी कतक होवे साध संग, बिनसे सभे सोच। फिर सोच क्यों रखनी, आप रज के संगत करिए, है ना जी। हाँ जी, अखीरलियां पंक्तियां का पाठ सरवण करो। गुरु पातशाह आप जियां दे उत्ते रहमत करन। श्लोक पढ़िया जाऊ, अरदास हुक्मनामा साहिब सरवण करियो, आने वाले प्रोग्रामां दा बेरबा सरवण करियो। हाँ जी। नानक को मेरे साहिब मंदिर मोच, कतक होवे साध संग, बिन सहज सोच।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।